رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی، السلام. جو جمعیت اہل حدیث ہے جو انڈیا میں ہے، جو پاکستان میں ہے، یہ صحیح سلفیت کے اوپر حق پر ہے نہ حق کو ہٹ کر ہے؟ وہ جیسا جمعیت منالی ہے وہ جمعیت کے اوپر قائم ہے یا سلفیت پر ہے؟ ہم کو تھوڑا یہ سوال کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سعودی وبرکاتہ. عرب کے جو کبار علماء ہیں اور مشائخ ہیں وہ اس جمعیت اہل حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو جمعیت اہل حدیث ہے وہ حکمران کی نافرمانی کرتے ہیں، حکمران کیسے؟ کا جو کہنا نہیں مانتے، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ریلی کرتے ہیں، یہ دیکھنے میں آتا ہے. تو ان کا حکم کیا ہوگا؟ ان کا حکم کیا دیے ہیں کبار علماء مشائخ اور تبلیغی جماعت والے کا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے جمعیت اہل حدیث والوں کا. ہاں اوکے. اور وہ جو اہل حدیث جو کہتے ہیں، جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، وہ جو عام لوگ رہتے ہیں ان کو عقیدہ نہیں سکھاتے، منہج نہیں سکھاتے. تو ان کا حکم کیا دیا ہے کبار علماء نے، مشائخ نے سعودی عربیہ کے؟ احمد صلی علی رسول کریم. اما بعد، دیکھیے میرے بھائی، آپ نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ان دو تنظیموں کا ذکر کیا ہے. میں ان دونوں تنظیموں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ ہندوستان کی تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے موجودہ امیر اور ناظم صاحب اور اس سے ماضی میں جتنے بھی امیر اور ناظم گزرے ہیں، مولانا مختار احمد ندوی سے لے کر عبدالوہاب خلجی صاحب، مولانا امام اصغر علی مہدی صاحب، اور اسی طریقے سے حافظ یحییٰ صاحب، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت سے لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جو بیمار ہیں ہمارے ناظم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجل اور کامل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اسی طریقے سے پاکستان کی جو تنظیم ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کے بھی علماء سے بعض مرتبہ، کیونکہ ہم سعودی عرب میں جدہ میں رہتے ہیں اور یہ جدہ حرم کا دروازہ ہے، اور یہاں سے جو بھی گزرتا ہے تو وہ کم از کم اس سے ملنے کا، اس سے علم حاصل کرنے کا موقع مجھے مل جاتا ہے. میں ریاض میں تھا تو پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، ان کے دروس میں بھی شرکت کی، اور اسی طریقے سے جو موجودہ ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ، ان سے بھی ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ راسخ علماء ہیں، اور یہ دونوں تنظیمیں سلفی منہج پر گامزن علماء کے زیر نگرانی چل رہی ہیں. آپ کو انتظامی امور میں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آیا وہ عقیدے میں سلفی منہج پر ہیں یا نہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہاں، وہ سلفی منہج پر گامزن ہیں. ہمارے ہاں تو دہلی اور قرب جوار کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ چند سالوں قبل اس تنظیم میں نظر بھی نہیں آتے تھے، لیکن اس مرتبہ میں گیا ہوں تو الحمدللہ وہ بھی بڑے بڑے علماء اسٹیج پر تشریف فرما تھے، اور 235ویں جو اہل حدیث کانفرنس ہوئی تھی اس میں میں شریک رہا. تو اس میں الحمدللہ سعودی عرب کے جو امام ہیں، امام کعبہ بھی کئی مرتبہ شریک ہوئے ہیں اس میں، اور امام مسجد نبوی نے بھی اس سال بھی 2024 میں شرکت کی تھی، اور اپنے بیان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جو کارکردگی ہے یا جو خدمات ہیں، آپ نے پوچھا نا سعودی عرب کے علماء کے سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں. سعودی عرب کے علماء کی انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی خدمات کو سراہا، اور اس کو سراہتے ہوئے، ان کے منہج کو سراہتے ہوئے، عقیدت کی بنیاد پر شیخ عبد الرحمن سدیس نے متعدد مرتبہ، ایون پاکستان میں بھی متعدد مرتبہ عقیدت سے محبت کا اظہار بھی کیا. اور بلکہ جب میں یہاں گیا شیخ عبد الرحمن سدیس کے پاس سے میری ملاقات ہوئی حرم میں، تو ہم ایک ڈیلیگیشن میں گئے تھے جس میں بر صغیر کے
बड़े उलमा शामिल थे। शेख अब्दुर्रहमान फरीवाई साहब मरकज़ी जमात से उनका ताल्लुक़ है हिंदुस्तान की, और इसी तरीके से अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी साहब, वो भी मरकज़ी जमात से उनका ताल्लुक़ है। और इसी तरीके से शेख तालिबुर्रहमान साहब थे पाकिस्तान के। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा जो अहले हदीस उलमा हैं, उनको शेख अब्दुर्रहमान सुदैस बड़ी ही इज़्ज़त और क़दर की निगाह से देखते हैं। बल्कि मुझे याद है कि वो बार बार शेख अब्दुर्रहमान सुदैस जब भी हमारी तरफ देखते तो वो शेर पढ़ते इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जिसे पढ़ा करते थे, अहले हदीस की मदा और अहले हदीस की पजीराई में वो अल्फाज कहा करते थे। तो शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने भी, या जितने भी अइम्मा जाते हैं दिल्ली में या लाहौर में मरकज़ी जमात अहले हदीस पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में, वो उनकी खिदमत को सराहते हैं। रहा ये कि ये अक़ीदे की नशर व इशाअत नहीं करते, तो मैं नहीं समझता कि अक़ीदा आप क्या समझते हैं। अगर हमारी वो जो नशर व इशाअत उनके यहाँ होती है, वो अगर ना होती, आपके पास अगर तर्जुमान आना शुरू हो जाए दिल्ली से, तो शायद आपको पता चल जाए कि वो किस तरह की अक़ीदे की इस्लाह अपने उस जो सफ़ीर जमात का एक मंथली मैगज़ीन है, या वो वीकली मैगज़ीन है ग़ालिबन अब तो उस मैगज़ीन में, बल्कि वो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, दोनों तीनों ज़बान में। आप उनके उलमा की खिदमत को छोड़ दीजिए, जो कि 2 दिन माशाल्लाह से अहले हदीस कॉन्फ्रेंस वहाँ रामलीला मैदान में अगर आप देखें तो उसमें अक़ीदे की बातें हो रही थी भाई, अक़ीदे की इस्लाह की बातें हो रही थी। दूसरा आपका ये कहना कि क्या वो तबलीगी जमात, हम तबलीगी जमात वालों के साथ, हम यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं, तबलीगी जमात वाले तो दूर की बात है, वो तो हमारे अपने मुसलमान भाई हैं। हम तो यहाँ जो गैर मुस्लिम हैं, अमेरिका के, हिंदुस्तान के हिंदू हैं या पाकिस्तान के हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, वो हमारे साथ ऑफिस में काम करते हैं, हम उनके साथ उठते बैठते हैं। अब आप ये कहें कि नहीं, ये उठना बैठना क्या आप हिंदुस्तान में अकेली बस में सफ़र करते हैं, हिंदुस्तान में ट्रेन में अकेले में आप जाते हैं? यकीनी बात है, आप वहाँ हिंदू भी है और गैर मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। अब सिख और ईसाई के साथ बैठने से उनके साथ आप मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं, तो क्या आपके ऊपर बदअक़ीदगी का कोई फतवा लगाएगा कि जनाब ये बदअक़ीदा है, ये तो सफ़र में बैठ कर इसने ये दिल्ली से मुंबई गया है फ़लानी ट्रेन में और उस जहाज़ में तो 100 में से 98 आदमी गैर मुस्लिम थे। आपका उस शख्स के बारे में, आप ही के बारे में क्या ख्याल है? अगर आप हज पे आ रहे हैं तो फ़्लाइट में आपके साथ साथ गैर मुस्लिम भी सफ़र करते हैं। अब कोई ये कहे कि ये बैठा हुआ था गैर मुस्लिमों के साथ, भाई मेरे, ये मुख्तलिफ चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। जब हम किसी मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क के बाशिंदों के साथ उठना बैठना, उनके दुख और सुख में काम आना, ये इस्लाम हमें सिखाता है। क्या हम अक़ीदे की बात बहुत मुतासिर होते हैं तबलीगी जमात के? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि तबलीगी भाइयों के अंदर, चूँकि मैं 10 साल तबलीगी जमात में रहा हूँ और ऐसे ही हमारी जमात के कई उलमा हैं जो तबलीगी जमात से तौबा करके आए हैं, वो अल्लाह के फज़ल व करम से अब उनको दावत और तबलीग भी देते हैं। तो ये कहना कि उनके साथ बैठने से, देखिए कुछ ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर जैसे कि बसेस हैं या ट्रेन्स हैं या हवाई जहाज़ हैं या हॉस्पिटल्स हैं। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं हॉस्पिटल में क्योंकि यहाँ गैर मुस्लिमों का इलाज होता है। अरे भाई, तो फिर आप कौन से मुल्क में रहेंगे? सऊदी अरब में भी गैर मुस्लिमों का इलाज हॉस्पिटल्स में होता है और यहाँ भी अल्लाह के फज़ल व करम से सबको उनकी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। तो ये कहना कि जनाब तबलीगी जमात के साथ हमारे यहाँ अगर उलमा स्टेज शेयर कर रहे हैं तो क्या उनसे दीन सीखते हैं? नहीं, उनसे तो दीन किसी ने नहीं सीखा, बल्कि उनको दीन सिखाने की कोशिश करते हैं। और मैंने शेख अब्दुर्रहमान सुदैस को, जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि आप लोग बैतुल्लाह के इमाम हैं, आप जाते हैं दारुल देवबंद, तो वहाँ जाकर हमें बाज़ मरतबा शर्मिंदगी होती है। तो लोग ये कहते हैं कि जनाब आपके तो इमाम साहब हमसे मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने कहा हाँ, हम उनको दावत देने के लिए वहाँ जाते हैं। हम अब ये बताइए कि उन्हें दावत देने के लिए अगर शेख अब्दुर्रहमान सुदैस वहाँ पर जाएं तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नंबर 1।
दूसरा ये कि आपने पूछा है कि जो देखें, आप इंडिया पाकिस्तान में कोई शरीयत नाफिज नहीं है, आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, और जमहूरी मुल्क का निज़ाम आपको, आपकी अगर हक तलफी कहीं हो रही हो, अपने हक को उसके मुतालबे के लिए ये कानूनी तौर पर आइन हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का आइन, चूँकि दोनों मुल्कों के यकसा वो जमहूरी मुल्क हैं, तो दोनों ममालिक के कायदे और कानून में आप हुकूमत तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए एहतजाज कर सकते हैं। ये आपके आइन का हिस्सा है, ये कानूनन कोई जुर्म नहीं है इंडिया पाकिस्तान में। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप उसमें वो हरकतें अगर करते हैं कि किसी की माल को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी पर बेजा तनकीद करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी के ज़मीन और जायदाद और दुकानों को जलाते हैं, नुकसान करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, आप उनको नुकसान नहीं दे सकते। अगर आप नुकसान दे सकते हैं, नुकसान देते हैं, तब आप मुजरिम हैं और अल्लाह की नज़र में गुनहगार हैं। लेकिन एक आदमी अगर जमहूरी मुल्क में रहता है तो जमहूरियत उस बात को, इस बात की इजाज़त देती है कि आप मुतालबा करें अपने प्रोटेस्ट का हुकूमत से, और हुकूमत आपको इजाज़त दे दे, तब आप उसको, आप हुकूमत के बागी नहीं होंगे। आप ये समझ रहे हैं कि हर आदमी जो एहतजाज करता है कि वो बागी होता है, जनाब ऐसा नहीं है। बागी आपका जो मुल्क है, आपका जो सियासी स्ट्रक्चर है, वो आइन, उस आइन ने आपको इस बात की इजाज़त दी है कि सर्टन एरियाज हैं कि भाई यहाँ पर आप हिंदुस्तान, दिल्ली का जंतर मंतर है, आप वहाँ जाकर इजाज़त ले लीजिए और मैं जंतर मंतर पे धरना देता हूँ। तो हिंदुस्तान का कानून आपको इजाज़त देता है कि आप वहाँ पर बैठकर धरना दें। अब आप धरना किस लिए दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहा हूँ कि कुरान और सुन्नत के अगर ख़िलाफ़ कोई आप काम कर रहे हैं तब वो जायज़ नहीं है, लेकिन आप अपनी मुतालबा कर रहे हैं तो उसमें हुकूमत हिंद आपको खुद इस बात की इजाज़त दे रहा है। तो इस सिलसिले में आप का ये कहना, अगर आप बच सकते हैं, एहतजाज नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, एहतजाज आप ना करें, बच जाए इस शर से और इस जमहूरी जो निज़ाम है। आप कहाँ जाएंगे? कौन से मुल्क में रहेंगे? कौन सी दुनिया है जो आपको अपने घर में बसाएगी? नहीं भाई, कहाँ जाएंगे? आप हिंदुस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले। तो बहरहाल ये दोनों तंजीमें, अहले हदीस, मरकज़ी जमात अहले हदीस हिंद हो या मरकज़ी जमात अहले हदीस पाकिस्तान हो, ये दोनों सलफ़ी तंजीमें हैं और इनके कायदीन अल्लाह के फजल करम से सलफ़ी मनहज पर गामज़न हैं, कुरान और सुन्नत के पैरोकार हैं, कुरान और सुन्नत के दावेदार हैं, कुरान और सुन्नत की दावत देते हैं। और ये एक अलग बात है कि ये जो तंजीमें हैं, ये कोई तंजीमें इसलिए नहीं बनाई गई हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि एक सिस्टम आप जिस मुल्क में रहते हैं, और वो ये उसके बाद ये रजिस्टर्ड तंजीमें हैं, हुकूमत की रिकग्नाइज तंजीमें हैं, हुकूमत उनको तस्लीम करती है। तो मेरे भाई, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वो कोई शरीयत तो वहाँ पर नाफिज नहीं है ना। तो जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, अगर आप उस मुल्क के कायदे और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस मुल्क में, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। इस्लाम उस वक्त आपको रोकता है जब आप किसी के लिए नुकसानदह साबित होते हैं, और मुसलमान उसकी ज़ुबान से, उसके हाथ से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो आप का ये कहना कि क्या मरकज़ जमात अहले हदीस हिंद और मरकज़ जमात अहले हदीस पाकिस्तान वो अक़ीदे की इस्लाह करती है, बिल्कुल दोनों जगह इस्लाह होती है। बल्कि मैं पिछले दिनों शेख अब्दुल करीम, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब जो हैं, जो नाज़िम आला पाकिस्तान है, उनकी एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई। उन्होंने एक फ़ाइल उठाई और फ़ाइल उठाकर वो ये कह रहे हैं कि ये पैगाम टीवी का 5 साल का मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है, आप आगे देख लें, मेरे जितने भी इदारे हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इन उलमा की उम्र दराज फरमाए और इनकी खिदमत अल्लाह ताला कबूल करे। तो हसद ना करें, बुग़्ज़ ना अपने दिल में बैठें, और उलमा से मिलें। उलमा से जब आप मिलेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि अक़ीदे की क्या इस्लाह की ज़रूरत है और कहाँ अगर कोई कमी और कोताही है, तो आप हमारी जमात के जो अमीर मोहतरम हैं, आप उनको लिख सकते हैं।
اور آپ اپنے شہر کی تنظیموں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن جڑ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں کو اللہ قرآن و سنت کی سمجھ اور اتحاد کی اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میری اس گفتگو سے اگر اختلاف ہے تو ادب اور شائستگی سے اسے اظہار بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔